Good morning students. Today we are going to start the last chapter of development, that is comparative development experiences of India and its neighborhood countries. But it is the last chapter of development, so after the written work of this chapter I will ask the PDF of all your written work very soon, and from tomorrow onwards we are going to start the statistic book. For that you have to make another notebook or register for the written work of statistic. So let's start. It's not a very huge chapter, it's just a small chapter of 1 or 2 pages, and only 2 or 3 questions are there to note it down. So let's start. It would be complete today only. So let's mention the date. It's 31st 8 2020. Chapter is 10th chapter, comparative development experiences of India and neighbors. So student, this chapter is basically about the comparative study of India with the neighbor country, that is in Pakistan and China. There is the comparative study on the basis of demographic profile and development projects, etc. Right? So let's start. Firstly, there's a development path of India, Pakistan and China. What is the development path? How they started their development after independence. Development path of India, China and Pakistan. So as we know, that India got independence in 15th August 1947 and Pakistan got independence on 14th August 1947. Saying the China didn't get any independence but got republic in 1949. Okay. All three countries had started the planning their development strategy in the similar way. Means we all have started the 5-year plan to develop our country as we got independent. Okay. Since 2003, Pakistan is working in the basis of 11 5 years development, and China working in 13th, and and until March 2017, India has been following the 5-year plan based on the development model. Okay. Now we will start the historical background of China. We will discuss the historical background. So if we went through the historical background of China, that it is the oldest civilization and the world oldest civilization was consisted there, and the culture and the China is always like a republic countries. Okay, and if we concern about the geographical format of the China, then China is bounded with the Pacific Ocean. चारों तरफ से वो प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, and the third largest country in the world after Russia and कनाडा. कनाडा और रशिया के बाद चाइना जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि पूरा का पूरा प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है. ओके, विद द एरिया ऑफ 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. अगर हम एरिया देखेंगे तो चाइना का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो है 9.6 स्क्वायर किलोमीटर्स. ओके, इफ वी कंसर्न अबाउट द पॉपुलेशन लैंग्वेज, देन द पॉपुलेशन, and we are well known that in China is the highly populated country in the world. Number 1 country है population के accordingly. उसके बाद the language is obviously is Chinese language is using that. And now if we talk about the
economy, then the being one of the oldest civilization in the world, China has been the world largest economy. क्योंकि हमें पता है, जैसे कि हमने पढ़ा ही है अभी रिसेंट, कि जो चाइना है इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, मतलब सबसे पहली जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है वो चाइना में ही हुई है, इसलिए इनकी जो इकोनॉमी है वो भी सबसे बड़ी है. आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी रूल, ऑल द क्रिटिकल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एंटरप्राइजेज लैंड्स ओन ऑन द ऑपरेशन बाय द इंडिविजुअल. क्योंकि रिपब्लिक है इसलिए वहाँ पे जितना भी काम होता है वो इंडिविजुअल फॉर्म में होता है, ठीक है, और जितना भी इंडिविजुअल काम है वो गवर्नमेंट के अंडर टेकन ही हो गया. क्यों? क्योंकि रिपब्लिक है. रिपब्लिक होने का मतलब क्या है? दैट देयर इज नो एनी कैपिटलिज्म, देयर इज ओनली सोशलिज्म. सोशलिज्म से मतलब क्या होता है? वी हैव डिस्कस्ड इन सेकंड चैप्टर of development, that where there is all the resources and all the economic activity is done under the government supervision and there is no individual control on any resources. It's a capitalism. Okay, now it's Pakistan. If we see the historical background of Pakistan, then the Pakistan ऑफिशियली एन इस्लामिक कंट्री. पाकिस्तान क्या है? एक इस्लामिक कंट्री है. बिकॉज वी नो दैट द पार्टीशन टुक प्लेस बिटवीन इंडिया पाकिस्तान इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मतलब हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे ही जो डिवीजन है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था कि भाई जितने भी मुस्लिम्स हैं वो चाहें तो अपना अलग राष्ट्र बना सकते हैं, अपनी अलग कंट्री बना सकते हैं. सो पाकिस्तान इज बेसिकली अ इस्लामिक कंट्री. ओके, who gained the independence on 14th अगस्त 1947. सेम ईयर में ही हम लोग 15th अगस्त को इंडिपेंडेंट हुए हैं इंडिया, एंड पाकिस्तान जो है वो 14th अगस्त को इंडिपेंडेंट हुई है. आफ्टर दैट इनसे एक पार्ट ऑफ जो बांग्लादेश के रूप में वो फिर से अलग हो गया था. जोग्राफिकली देखें तो पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया एंड बॉर्डर्ड एशिया विद द मिडल ईस्ट एंड द बॉर्डर विद चाइना इन द नॉर्थ में चाइना से बॉर्डर्ड है. Okay, and the west and northwest area is bounded with the Iran. Okay, and east and southeast is bounded with the India. तो मतलब चारों तरफ से ही ये कंट्रीज से घिरा हुआ है. Population and languages is concerned, then Pakistan is 6th most populous country. 6th नंबर पर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, 6th प्लेस पर. एंड द लैंग्वेजेस उर्दू एंड हिंदी इज used here basically. Now the comparative study. China and Pakistan. Comparative studies. Comparative study will be on the basis of demographic profile. So, if we see the population, then China is the most populous country. We know. Okay, with the population of 1371 million peoples, and in second place, India is second most populated country is 1331 million peoples. ओके, मीन्स जो पाकिस्तान जो चाइना है वो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है फर्स्ट प्लेस पे, एंड देन जो इंडिया है वो सेकंड प्लेस पर है, एंड पाकिस्तान वी नो दैट इट इज़ ऑन 6th प्लेस. ग्रोथ रेट अगर हम देखेंगे थ्रू द चाइना इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, हम जानते हैं कि चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, स्टिल इट इज़ वेरी डेवलप्ड कंट्री. नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग कि even though the country is populated and dense, still it is growing or it is developed. So what's the reason behind? The reason is very simple, that the population is larger in China, but all the population is converted into the human resource. Means चाहे से population बहुत ज़्यादा है, human being बहुत ज़्यादा है, but all the human being are converted into human resources. So if there is the workforce is converted into human resources, that it is very beneficial for economic activity, because everybody is engaged in इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रोडक्शन. हर बंदा जो है चाइना में वो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वो प्रोडक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है इन कंपैरिजन टू इंडिया. अब इंडिया में क्या होता है कि भले ही चाइना से कम है थोड़ी सी पॉपुलेशन, बट
द पॉपुलेशन मतलब 60% 40% of the population is kind of liability on the economy. They are not doing anything, they are not physically healthy, they are not skilled, they are not educated, they are not involved in or engaged in any economic activity, or they are not producing anything which is beneficial to our economy. So they are like kind of burden और liability to the economy, जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो बंदे हैं वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं. एंड द ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इज much lower than India also. If we see the sex ratio, then the sex ratio in all three countries is very low, because in all three countries the people are concerned about the बॉयज़. मीन्स जैसे हम सोच रहे हैं जैसे इंडिया में होता है कि भाई बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स. मीन्स नॉट इन एवरीवेयर बट इन रीजन, मीन्स लाइक राजस्थान, हरियाणा वगैरह, यहाँ पे क्या होता है कि बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है ना. तो सेक्स रेशो क्या है हमारे यहाँ पे, लो है. सेक्स रेशो का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ गर्ल्स इन कंपेयर टू बॉयज़, तो वो कम है. तो सेम यही कंडीशन पाकिस्तान और चाइना में भी है. ओके, आफ्टर दैट अर्बनाइजेशन. देन द अर्बनाइजेशन इज द हाईएस्ट इन चाइना. चाइना में सबसे ज़्यादा शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है दैट 56%. एंड इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया में 33% एंड पाकिस्तान में 39% अर्बनाइजेशन है. अर्बनाइजेशन का मतलब सिंपली ये है कि मॉडर्नाइजेशन. अगर शहरीकरण हो गया इसका मतलब मॉडर्नाइजेशन आ रहा है सिविलाइजेशन में. तो चाइना में ज़्यादा है, पाकिस्तान में फिर थोड़ा कम, एंड देन इंडिया में काफ़ी कम है. आफ्टर दैट एग्रीकल्चर, विल डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर तो अगर हम चाइना में देखेंगे बच्चे, then due to the tropic and the climatic condition the area suitable for cultivation is just 10%. अब देखो कितना ज़्यादा मिसकन्वीनियंस है चाइना के साथ कि बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल मतलब एक्सेसिवली जो बारिश और वैसा वेदर हो जाता है. तो मीन्स एक्सेसिव ट्रॉपिकल वेदर होने की वजह से ओनली द 10% लैंड ऑफ चाइना इज कल्टिवेबल, जिस पर वो खेती कर सकते हैं. बाकी का जो 90% जो उनका लैंड एरिया है इट इज़ नॉट यूज फॉर कल्टिवेशन. Okay, the total cultivable area in China is account for 40% of the cultivable area of India. अगर कंपेयर करेंगे तो चाइना का टोटल जितना भी पूरी कंट्री में कल्टिवेबल एरिया है वो इंडिया का केवल 20% ही है, सॉरी 40% है. मीन्स सपोज अगर इंडिया का ये पूरा एरिया कल्टीवेशन के लिए यूज होता है तो चाइना का केवल इतना ही एरिया है जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज हो पाता है बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से. ठीक है, तो इसलिए चाइनीज जो पीपल हैं दे आर मोर इंगेज्ड विद द प्रोडक्शन एक्टिविटीज. राइट नाउ since the government enforce the people to leave their field and pursue the activity like handicraft, commerce and transport. इसलिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है they pressurize, not pressurize but enforce the citizens to pursue more of handicraft बिजनेस और कमर्शलाइजेशन ऑफ द थिंग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन. मतलब क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि एरिया ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए नहीं है, अगर लोग एग्रीकल्चर को ही फोकस करेंगे तो दे बिकम मोर अनएम्प्लॉयड. सो गवर्नमेंट वहाँ पे एनफोर्स करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ों को या दूसरे किसी भी कॉमर्स मतलब व्यापारीकरण में इन्वॉल्व हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन के काम में इन्वॉल्व हो, सो दैट उनका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता रहे. ओके, अब नाउ about the India, the contribution of agriculture to GDP was 17%. इंडिया के एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में है वो है आपका 17%. एंड द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वाज 50%. और इंडिया की 50% जो सिविलाइजेशन है इट इज इंगेज्ड विद एग्रीकल्चर. पाकिस्तान, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द जीडीपी वाज सेम एज 25%. जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो 25% है. एंड द वर्क फोर्स इज 43%
ऑफ वर्कफोर्स इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। पाकिस्तान की 43% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ओके, नाउ human development indicators. Human development indicator, it is very important to discuss, because only these questions are there in your book to note it down in your notebooks, and examination में भी mostly यही question आता है कि explain the agriculture comparative study on the basis of agriculture, or on the basis of demographic profile or the human development indicators. Human development indicators. If we talk about the human development indicators, so firstly we will discuss the human development index. Human development index in 2060, human development index का अगर हम देखें for India, Pakistan and China, estimated 0.624, जो इंडिया का है वो 0.624, चाइना का 0.738 एंड द पाकिस्तान इज 0.550 रिस्पेक्टिवली, कि कितने लोगों का डेवलपमेंट हुआ है वो इस तरीके से है। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले तो कहते कैसे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है बेटा कि पर ईयर कितने बच्चे, मतलब हाँ नंबर, कितने नंबर ऑफ पीपल जो है दे आर एक्सपेक्टेड टू लाइव, है ना, कितने लोग अलाइव हैं। सो a higher life expectancy indicator longer and more active average life जो स्पैन होता है, लाइफ स्पैन होता है, किस कंट्री में लोगों का ज़्यादा है और ज़्यादा हेल्दी है। देन द चाइना इज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज़्यादा है, कितनी है, एवरेज 76 ईयर, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान का अगर हम देखेंगे तो इंडिया का 68.3 एंड द पाकिस्तान इज 66.4 लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग का अगर देखें द हाईएस्ट इन द केस इन द चाइना में 7.6%, while the figure of India and Pakistan is 6.3 and the Pakistan is 5.3 respectively. Infant mortality rate, what is infant mortality rate? Infant mortality rate का मतलब होता है कि कितने बच्चे पर ईयर पैदा हो रहे हैं और उनमें से कितने बच्चे सस्टेन कर रहे हैं लाइफ को, इज द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो हमारा जो चाइना है विद द 9 इन्फेंट इन द हाईएस्ट, इन द पाकिस्तान है 66 इन्फेंट, मीन्स जो चाइना है वहाँ पर 9 इन्फेंट्स हैं, मीन्स जो डेथ रेट है इन्फेंट्स का पाकिस्तान में 66 एंड इंडिया में 33। पीपल below poverty line, poverty line which are who are poor, we have discussed, poor are the people who are not able to get the basic living infrastructures, like they are not getting pure water to drink or shelter to live, wearing the clothes, they are not getting even the बेसिक थिंग्स फॉर लिविंग, जिनको ज़िंदगी के लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो रही हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ पुअर। तो पोवर्टी लाइन भी अगर हम देखेंगे तो चाइना में अगर है तो वो है 32%, देन पाकिस्तान इज विथ 44% एंड इंडिया इज 32%। ओके, then GDP is the most important thing, GDP or per capita. What is the difference between GDP and per capita? Income. GDP is simple gross domestic product. GDP क्या होता है बेटा, इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारी कंट्री के अंदर अंदर टोटल जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी फाइनल गुड्स बन रहे हैं, दिस इज GDP। बट पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम इज टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल number of people
मतलब पॉपुलेशन भी बोल सकता है कि हमारी जो टोटल इनकम कितनी है, और उसको अगर हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो एक बंदे के पास टोटल इनकम कितनी आती है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। तो वो भी अगर हम जीडीपी और पर कैपिटा देखें तो इट इज़ हाईएस्ट इन चाइना, देन इंडिया एंड देन पाकिस्तान। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड ऑल अबाउट द चैप्टर ऑल्सो। देयर इज now only the conclusion and the notes which I'll send you tomorrow. Till then you should revise the chapter line by line from your book, textbook, and if you are getting any confusion, you are having any problem or doubts, you can ask. Till then, take care.